میرا نام ذیشان ہے اور آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی کی بھیانک ترین کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے 9 سال پرانی بات ہے۔ میں بالکل جاب لیس تھا، میرے پاس جاب نہیں تھی۔ میں بھیرا سے آگے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے۔ تعلیم اتنی خاص نہیں تھی، اس لیے ہمیشہ سے ناکام ہی رہا، کہیں اچھی نوکری بھی نہیں ملتی تھی۔ ایک دن میں بہت سخت پریشان تھا۔ ایک جگہ سے میں واپس آ رہا تھا، ایک ویران سا راستہ تھا، تو وہاں پر میں نے ایک بوڑھے شخص کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بوڑھا شخص ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے پتہ نہیں کیا وہ کچھ بول رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا بلند آواز میں۔ میں نے اسے دیکھا، میں اسے دیکھ کر تھوڑی دیر کھڑا ہو کر دیکھنے لگ گیا۔ ایک دم کچھ پڑھتے پڑھتے وہ میری طرف دیکھنے لگ گیا۔ بڑے غور سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے پکارا، بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ میرے پاس۔ میں چلا گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے تم پریشان ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں ہوں۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں پریشان ہوں اور کس لیے پریشان ہوں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے تم کس لیے پریشان ہو، تم نوکری کے لیے پریشان ہو، تمہیں نوکری نہیں ملتی۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا مجھے سارا کچھ پتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پھر اگر تمہیں پتہ ہی ہے تو تم میری مدد کرو، مجھے بتاؤ کہ مجھے کیسے نوکری وغیرہ مل سکتی ہے، میں تو بہت پریشان ہوں اور اپنے آپ سے بھی تنگ آ چکا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک چلا دوں گا، وہ چلا تم نے جا کر قبرستان میں کرنا ہے۔ پہلے مجھے کہنے لگا کیا تم بہادر ہو؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں ہوں بہادر۔ پوچھنے لگا جنات سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ کبھی دیکھے نہیں ہے، سنے ہی ہیں، اس لیے اتنا خاص ڈر نہیں لگتا۔ اس نے مجھے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں کوئی پڑھائی دوں تو پڑھ لو گے؟ میں نے اسے کہا ہاں پڑھ لوں گا۔ تو کہنے لگا کہ وہ پڑھائی تم نے قبرستان میں جا کر پڑھنی ہے آدھی رات کے وقت۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ وہ پڑھائی جب تمہاری پوری ہوگی تمہارے پاس ایک عورت آئے گی۔ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہوگی، کوئی انسانی عورت نہیں ہوگی، وہ ایک پری ہوگی۔ وہ پری تمہارے پاس آئے گی، اس پری سے تم جو کچھ بھی مانگو گے وہ پری تمہیں دے دے گی اور تمہیں بہت مال و مال کر دے گی، دولت بھی دے گی، تمہاری جو بھی خواہش ہوگی اسے پورا کرے گی۔ لیکن وہ چلا تم نے ایک بار ہی کرنا ہے، بار بار تم نہیں کر سکتے، ایک ہی بار کرنا ہے اور ایک ہی بار تم نے اس سے جو بھی مال دولت پیسہ لینا ہے وہ ایک بار ہی لینا ہے۔ اس کے بعد وہ پڑھائی، وہ جس جگہ پر تم نے چلا کرنا ہے وہاں پہ جا کر تم نے صدقے کا گوشت کر اس پڑھائی کو بھول جانا ہے کہ کوئی پڑھائی تم نے کی تھی، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، تمہیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا، میں تمہیں پری کا چلا دے رہا ہوں، میں تمہیں کسی جنی یا چڑیل آفت کا نہیں دے رہا، اور یہ پڑھائی تم نے 11 دن کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ اس نے مجھے بٹھا کر پڑھائی یاد کروائی۔ آسان تھی، کچھ لفظ تھے مجھے یاد ہو گئے، میں نے یاد کر لیے۔ اس نے مجھے کہا کہ پرسوں رات سے تم نے پڑھائی شروع کر دینی ہے، کل تم نے پڑھائی نہیں کرنی، اور پڑھائی کے لیے تم نے جانا بھی قبرستان میں رات اس وقت ہے جس ٹائم کوئی انسان بھی نہ ہو، اور تم نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھائی کرنی، اس جگہ پر نشانی لگا لینا، جگہ نہیں بدلنی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں گھر گیا، میں اس بارے میں سوچنے لگا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں یہ کام میرے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر میں نے سوچا چلو کر کے دیکھ لیتا ہوں، پتہ نہیں اس سے بھی کچھ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ میں اپنے حالات سے بہت زیادہ ڈسٹرب تھا اور میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دھن میرے اوپر سوار تھی جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھ پایا کہ پتہ نہیں اس میں مجھے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ گھر والوں کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جیسے ہی گھر والے آدھی رات کو سوئے، 2 دن میرے سے کشمکش میں گزرے، میں کروں نہ کروں۔ حالت میری ایسی تھی کہ کبھی ارادہ بناتا تھا، کبھی ہٹاتا تھا، کبھی بناتا تھا، کبھی ہٹاتا تھا۔ تو خیر میں نے کوشش کی کہ چلو میں کر کے دیکھتا ہوں۔ اب جس رات میں نے چلا کرنا تھا اس دن کی بات ہے، میں اپنی امی کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے ویسے امی سے باتیں کی، میں نے کہا جو جنات ہوتے ہیں کیا وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اگر وہ انسان کے پاس آئے؟ امی پہلے ہنسنے لگی اور پھر کہنے لگی ہاں بالکل، جنات انسانوں کی بڑی بڑی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے نیک جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں،
पुराने दौर में हम भी ये कहानियां सुनते थे. अब मुझे थोड़ा सा यकीन हो गया कि शायद ये चिल्ला काम घर से है. मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है. अम्मी कहने लगी तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने उन्हें कहा कि बस वैसे मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि जिन्नात अक्सर लोगों की मदद करते हैं अगर किसी को कोई नेक जिन मिल जाए. अम्मी कहती हाँ ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मदद करे, बात बहुत नुकसान भी देते हैं. अब अम्मी मुझे थोड़ा डराने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मैं इस काम की तरफ न चला जाऊं. मैंने उन्हें कहा छोड़े अम्मी, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता. ये मैंने इसलिए कहा कि अम्मी को मेरे ऊपर शक ना हो जाए. अब वो रात थी, तकरीबन 12 बजे का टाइम था. मैं उठा, मैंने चक्कर लगाया, सब घर वाले सो रहे थे. तकरीबन अक्टूबर का मिड जा रहा था, थोड़ी थोड़ी ठंड होती थी, तो घर वाले अब कमरों का दरवाजा बंद कर लिया करते थे. मैं निकला तकरीबन अपने घर से 1:30 बजे के करीब निकला. हम लोगों के गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था जो बिल्कुल एंड पर था, गांव के एंड पर. उस तरफ आबादी वगैरह नहीं थी. अक्सर हम लोग वहां पर जाया भी करते थे. मैं उस तरफ गया, वहां पर मैंने एक जगह देखी. वो जगह थोड़ी सी खाली थी, वहां पर भी पुरानी कब्रें थी लेकिन जगह खाली थी, बैठने की जगह थी. बाकी तो इतनी ज्यादा वो 7-7 कब्रें थी कि जगह बैठने की नहीं थी. मैं वहां पर बैठा, जैसे जैसे उसने मुझे तरीका बताया मैंने आग जलाई. आग जलाकर बैठकर मैंने चिल्ला करना शुरू कर दिया. पहले दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन मुझे ऐसा लगने लगा जिस तरह से मेरे आसपास कोई गुनगुनाता है. किसी के गुनगुनाने की आवाजें थी, किसी औरत के गुनगुनाने की. मैं चारों तरफ देखता था, मुझे नजर कोई भी नहीं आता था. चौथे दिन भी ऐसे किसी के गुनगुनाने की आवाजें आई. 5वें दिन जब मैंने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई कर रहा था, एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हो गया. एक एहसास, एक वजूद मुझे बिल्कुल अपने करीब महसूस. अब मैं डर गया, देखूं ना देखूं समझ में नहीं आ रहा. मैंने हल्की सी आंख चुरा कर देखना चाहा. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे पीछे कोई सुर्ख लिबास पहने खड़ा हुआ. मुझे लगा कि शायद ये इसी अमल की कोई मखलूक है जो मेरे पीछे खड़ी है. मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर पढ़ने लग गया. वो काफी देर मेरे पीछे खड़ी रही, गुनगुनाती रही. उसके बाद ये होने लगा कि जब मैं घर आकर सोता था ऐसे लगता था मेरे बालों को कोई सहल आता है. आंख खुलती थी तो कोई भी नहीं होता था. अम्मी वगैरह को पता ही नहीं चला कि मैं घर से निकलता भी हूं या नहीं, क्योंकि मैं ड्राइंग रूम में सोता था, वहीं से निकल जाता था, वहीं आकर सो जाया करता था. 2-3 दिन यही काम रहा. जिस दिन 8वीं रात थी, उस रात मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई मेरा नाम पुकारता हुआ मेरी तरफ आ रहा है और औरत है, उसी तरह से वो आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई. आज उसने जो वो लिबास सा पहना हुआ था वो बिल्कुल मेरे कंधे के ऊपर किया. मैं दिल में बड़ा खुश की ये चीज तो अब जाहिर हो गई है, अभी मेरी मदद भी कर देगी. चेहरा तो अभी मैंने देखा नहीं था. एकदम से वो छन छन करती बिल्कुल मेरे सामने आ गई. जिस टाइम वो मेरे सामने आई, मुझे तो उसने परी बताया था, वो तो इतनी हैबतनाक थी, इतनी हैबतनाक थी, वो इतनी खौफनाक थी कि अभी भी मुझे जब वो याद आती है मेरे पसीने छूट जाते हैं. उसका खौफनाक चेहरा था, बहुत ज्यादा काला जला हुआ चेहरा था, जगह जगह पर सुराख थे, सफेद आंखें थी, सफेद कलर की जुबान थी जो मुंह से बाहर निकली. इतना भयानक मंजर मैंने जिंदगी में नहीं देखा. उसको जब मैंने देखा मुझे ऐसा लगा मेरे दिल की धड़कन रुक चुकी है और वो मेरे सामने आकर मेरा नाम ले रही थी कि तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई हूं. बस ये उसके कहने की देर थी. मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ी, मैं चीखो पुकार करता वहां से भाग गया. मुझे उस बंदे ने कहा था कि वो परी के रूप में आएगी और बड़ी खूबसूरत होगी, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी. ये तो इतनी खौफनाक मखलूक थी. मैं चीखे मारता हुआ वहां से भाग रहा था और मुझे वाजे तौर पर लग रहा था मेरे सर के ऊपर कुछ चीज उड़ रही है. पता नहीं वो मखलूक उड़ रही थी या क्या था, बहरहाल कुछ काला काला उड़ रहा था मेरे सर के ऊपर. परों की आवाज थी. पता नहीं मैं अपने घर कैसे पहुंचा. मैं घर आया, मैंने शोर मचा दिया, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी. घर वाले जाके वो परेशान के कौन मार देगी, कौन इसको नजर आ रहा. उन लोगों ने समझा कि मैंने कोई ख्वाब देखा. मैं बेहोश हो गया. रात भर मैं बेहोश रहा. रात भर हम लोगों की घर की छत के ऊपर से किसी की आहटें आवाजें महसूस होती रही. सुबह जब मैं होश में आया, मैंने चीख चीख कर घर वालों को बताया कि मैंने तो कब्रिस्तान में जाकर पढ़ाई की, वहां से कोई चीज मेरे पीछे लग गई. अम्मी अब्बू बहुत ज्यादा परेशान, मेरा बुरा हाल, मेरे जिस्म पर नील पड़ गए.
बुखार इतना शदीद। अब अबू बेचारे भाग दौड़ करने लगे कि किसी साहिब इल्म का पता चले तो हम किसी को लेकर आए। मैंने उन्हें बताया कि वो आदमी मुझे फलां जगह पर मिला था। अबू वहां तक गए, कोई बंदा नहीं था। एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि वो अक्सर एक जादूगर इस तरफ आता है, वो जादू की अमलियात करता है तो हम उसको भगा देते हैं। 2-3 बार उसने यहाँ पर भी कब्रिस्तान में अमल करने की कोशिश की है, उसको हम लोगों ने यहाँ से भगा दिया था। अब किसी अमल का पता नहीं चल रहा था। मेरी हालत खराब से खराब हो रही थी। मुझे तो जले हुए गोश्त की स्मेल आने लगी घर से, और मुझे ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में वही काले चेहरे वाली औरत है जगह जगह पर। कभी वो बाहर सहन में खड़ी है, कभी वो कमरे में खड़ी है, कभी मुझे ऐसे लगता था मेरे बिस्तर के नीचे भी है। मुझे आवाजें देती थी वहां से। फिर ऐसा होना कि जब मैं रात को सोया होता था, मुझे ऐसे लगता था काला स्याह हाथ है जो मेरे ऊपर होता है, जैसे मेरे कंधे के ऊपर काला हाथ होता है। मैं उसको झटक झटक के थक जाता हूँ, वो हटता नहीं है। और फिर मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कुछ जकड़ लेता है। मैं बेड से उठने की कोशिश करता था, मेरे से बिस्तर से उठा नहीं जाता था। मैं चीखता था, शोर मचाता था, घर वाले भागते थे, मेरे पास आते थे, लाइटें जलाते थे। हालांकि लाइट जल रही होती थी। मेरे कमरे में मेरे पास कोई सो नहीं सकता था। जो भी मेरे साथ सोने की कोशिश करता था, उस कमरे में रहने की कोशिश करता था, उनके कानों में चीखें सुनाई देती थी। 3-4 दिन यूं ही गुजर गए। पूरे खानदान में बात फैल गई कि कब्रिस्तान से मेरे पीछे कुछ चीज लगी है। अब्बू के एक कजन थे, उन्हें एक बुजुर्ग का पता था। उन्होंने अब्बू को बताया, वो उस गांव से उन बुजुर्ग को लेकर आए। वो बुजुर्ग जब आए, उन बुजुर्ग ने मेरे ऊपर पढ़ाई की। उन्होंने कहा इसके ऊपर तो चुड़ैल है, इसने तो चुड़ैल की हाजिरी की पढ़ाई की है, और इसने बिल्कुल एंड पर आकर वो पढ़ाई इसने छोड़ दिया, वो चीज इसके पीछे लग गई क्योंकि इसने उसको बुलाया। मैंने उन बुजुर्ग को कहा कि मैंने तो पढ़ाई की थी परी की, मुझे तो उसने परी का बोला था, मैं तो जानता ही नहीं था कि चुड़ैल की पढ़ाई है। तो उनका कहना था कि ये जादूगर ऐसे ही करते हैं, जिनको इन्होंने अमलियात में फंसाना हो उनके साथ यही काम करते। अब तो वो चीज तुम्हारे पीछे है, इतनी आसानी से उसने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना। फिर उन्होंने एक तावीज दिया। उन्होंने कहा कि तावीज अभी आप अपने घर में लगाए, इसके गले में पहनने की गलती नहीं करने की। इसके गले में डाला वो चीज इसको जानी नुकसान दे देगी। मुझे रात भर वो सोने नहीं देती थी। मैं चीखें मारता था, मैं रोता था। मेरे घर वाले मेरे पास आते थे, कुछ देर बैठते थे, बेचारे डरने लग जाते थे। वो कहते थे हमें ऐसे लगता है तुम्हारे कमरे में कोई मौजूद है, हमें कोई वजूद महसूस होता है, नजर नहीं आता लेकिन ऐसे लगता है हम लोग चलते हैं और हमारे साथ कोई टकराता है। फिर मुझे ऐसा लगना कि जैसे मेरा दिल चाहता था मैं उस कब्रिस्तान में जाऊं, उसी जगह पर जाऊं, उस जगह पर जाऊं जहां से वो चीज मेरे पीछे आई। उस चीज ने मेरा दिमाग मूव करना शुरू कर दिया। मैं इनको कहता था कि मुझे एक दफा जाने दें, मैं वहां जाकर पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ, वो चीज चली जाएगी। 1-2 बार मैंने कोशिश भी की कि मैं घर से निकलूं, लेकिन ताला लगा होता था। एक बार मैंने छत से छलांग लगाने की कोशिश की तो मेरे अब्बू को पता चल गया। इन लोगों को पता चल गया कि मेरी हालत बड़ी खराब है। इन लोगों ने मुझे बांधना शुरू कर दिया। ये बांधते थे जब मुझे, तो मैं अकेला होता था, मैं शोर मचाता था, मुझे वो चीज नजर आती थी, मुझे तंग करती थी, डराती थी बहुत। फिर मेरे अब्बू को पता चला, एक बुजुर्ग का, मुझे वो इस्लामाबाद वाली साइड पर लेकर के उन बुजुर्ग ने मेरा 3 माह इलाज किया। 3 माह उन्होंने मेरे ऊपर पढ़ाई की, तब उस चीज ने जाकर मेरी जान छोड़ी। जो 24 घंटे मुझे नजर आती थी, मुझे डराती थी, मेरे सामने आकर बैठ जाती थी, खड़ी हो जाती थी, मुझे पुकारती थी, मेरा नाम लेती थी। वो फिर मेरी जान छूटी, लेकिन जान ऐसे छूटी कि सामने नहीं आती थी। फिर भी कभी कभार जिंदगी में मेरे ऊपर दौरे की कैफियत आती थी। मैं कब्रिस्तान के पास से भी गुजरता था तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कब्रिस्तान में हर तरफ वो खड़ी है, हर कोने में मुझे खड़ी नजर आती थी, लेकिन अब वो मेरे करीब नहीं आ सकती थी। मैं फिर इतना खौफजदा रहता था, मैं कब्रिस्तान वाली तरफ गुजरता भी नहीं था। उसके बाद मुझे डरावने ख्वाब अक्सर आते थे। अक्सर मुझे उस 3 माह के बाद इस काबिल हो गया था कि सो सकता था, वरना मैं सो भी नहीं था पाता। अब वो उस तरह से नहीं डराती थी, ख्वाबों में आकर बहुत ज्यादा तंग करती थी, डराती थी, आवाजें देती थी जैसे मैं कब्रिस्तान में होता हूँ। फिर मैंने तौबा इस्तगफार की, मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू की, कुरान पाक की पाबंदी की। मैं बहुत बहुत देर मस्जिद में बैठा रहता था, दर्स सुनता था, अल्लाह से रो रो कर माफी मांगता था कि मेरे से क्या हो गया। तब जाकर मैं उस मखलूक के शर से और उसके कब्जे से बाहर निकला। कभी भी इन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कभी भी ऐसे कोई भी आपको रोकर कुछ भी कहे कि ये कर लो, नहीं करना चाहिए। ये मखलूकात अगर एक दफा आ जाए, एक दफा हावी हो जाए, तो ये फिर जान नहीं छोड़ती। मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से अज़ाब देखे हैं। मुझे पता है
کہ میں نے کتنا کتنا مشکل وقت دیکھا ہے. اس لیے میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی ان کاموں میں مت پڑے. یہ کام انسان کو صرف اور صرف نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ جنات جب کسی پر ایک بار حاوی ہو جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ میری ایک کہانی تھی.